So knuckle joint theory and knuckle joint failure modes we have seen. Okay. So how our knuckle joint is failing. Okay. So how our knuckle joint is failing and which are the main diameter of that knuckle joint. Okay. That we have seen. Hmm? So now we will going to design one knuckle joint. Okay. So now we will going to design one knuckle joint based on the force and stress given. Okay. So we will see one problem. See the problem. What is given? Axial tensile force is given. See here. This is the axial tensile force of 50 kilonewton. Okay. And uh, if this question will ask in the exam, if question is asked in exam without factor of safety, okay, at last lecture also I have seen if factor of safety is not given for knuckle or quarter joint, so which factor of safety you have to take? Factor of safety you have to take as 5. Okay, see here, factor of safety 5 they have given. Okay, and you see total problem, you study the total problem. Is there any condition which states that there is difference factor of safety for quarter pin and quarter? Sorry, knuckle pin and knuckle 4 or knuckle I. Same factor of safety is there for both the material. You see here. So only one factor of safety we have to calculate. लास्ट एग्जाम में एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? टू फैक्टर ऑफ सेफ्टीज वी कैलकुलेटेड. Why we calculated two factor of safeties in last example? You tell me. You text me. Message type कीजिए. Why we have taken two factor of safeties in last example? लवकर टाइप करा माहित असेल तर. क्वेश्चन सिंपल है. इधर दिया था अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था उन्होंने 6 और 5. इधर क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया ही नहीं है. So if factor of safety is not given, then what is the case? We have to take factor of safety as 5 for all the materials. Okay. कौन से materials है इधर? पिन है, फॉर्क है और आई है. तो वो सभी के लिए हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी इधर क्या पकड़ना है? 5 पकड़ना है. ओके. तो इधर एक ही कैलकुलेशन आएगा, दो कैलकुलेशन इधर नहीं होंगे, सिर्फ एक ही कैलकुलेशन इधर आएगा और वो फैक्टर कैलकुलेशन होगा फॉर सिग्मा टी, सिग्मा सी एंड टाउ. ओके. तो फर्स्ट सिग्मा टी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस एस बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. एस बाई टी कितना दिया है? 400 दिया है. See here, this is 400. This is the grade of material. Okay. This is steel grade. कार्बन स्टील का ये ग्रेड है. उस ग्रेड के लिए हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना दिया है? 400. सो 400 अपॉन 5 80. ओके. सिग्मा टी. अभी सिग्मा सी क्या है? सिग्मा सी इट इज 400 अपॉन 5. ओके. सो विच इज अगेन 80. And tau. Okay. So tau is always half of the sigma t. Okay. ये जो सिग्मा टी है उससे ये हाफ होता है. ओके. ये सिग्मा टी है उससे ये क्या होता है? हाफ होता है. सो इट विल बी अराउंड 40. ओके. तो सिग्मा सी और सिग्मा टी इधर इक्वल लिया है.
both are 80 80. ओके, और शेयर स्ट्रेस ऑलवेज, ओके, शेयर स्ट्रेस यहाँ इससे कभी भी हाफ होती है. ओके, ये जो शेयर स्ट्रेस होती है ये सिग्मा टी से कभी भी कितनी होती है, हाफ होती है. ओके, ये जो शेयर स्ट्रेस होती है वो सिग्मा टी से कितनी होती है, हाफ होती है. तो इसलिए सिग्मा टी कितना है, 80, तो टाउ कितना आ जाएगा हमारा, 4 पे आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ नकल जॉइंट में क्या हमको याद रखना है, सिग्मा टी एंड सिग्मा सी आर इक्वल. If factor of safety is not given, you have to take factor of safety as 5. ये 2 पॉइंट हमको इसमें याद रखने हैं. ओके, तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा. सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ द डायमेंशंस. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द डायमेंशंस. ओके, सी हियर, कैलकुलेटर ऑफ डायमेंशंस. उसमें पहला है डायमीटर ऑफ द रॉड. ओके, तो डायमीटर ऑफ रॉड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू 4p पाई बाई सिग्मा टी. ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया. सिग्मा टी इज इक्वल टू p अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर. so d is equal to 4p pi into sigma t. Same formula we are using here. 4 into p कितना है, 50 into 10⁻³ pi upon sigma t है 80. okay, which is equal to 30 mm. ओके, अभी ये इंपेरिकल रिलेशन है. इंपेरिकल रिलेशन कहाँ से लिया हमने, ये फॉर्मूला है देखो, d1 is equal to 1.1 d. d1 is equal to 1.1 d. okay, this formula now we have to take. so d1 1.1 into d. 1.1 into d. d is what, 30. 30 कैसे आ गया है, राउंड अप किया हमने, 28.21 है उसको 30 किया. और इट कैन बी राउंडेड बाय अराउंड 1.8 mm. 1.8 mm हम ज्यादा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर. सो 30 into 1.1 it is equal to 33. 33 can be rounded up to 35 mm. 2 mm को इसको भी राउंड अप किया है. ओके, जस्ट ए मिनट. नॉर्मली कॉलेज को जो आपने मेल आईडी दिया है वही मेल आईडी यूज करो. ये हमारा मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है. ये रिकॉर्डिंग में हमारा लेक्चर चल रहा होता है, स्क्रीन के बीच में कोई तो इन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाता है. आपका आपके ऑफिशियल मेल आईडी से लॉगिन करो और फिर यहाँ पे एंट्री करते जाओ. ओके, रिमेंबर. हाँ मुकेश, तुमच्या ऑफिशियल मेल आयडी ने इन होत जावा, म्हणजे आम्हाला प्रत्येक वेळेस स्क्रीन बॅक करायची गरज नाही. ओके, so dimensions A and B. Okay, so now we will see A is equal to 0.75 of D and B is equal to 1.25 into D. ये कौन से रिलेशंस है बोलिए, ये रिलेशंस कौन से है, टेल मी. ये इंपेरिकल रिलेशंस है, देखिए यहाँ पे. These are which relations, empirical relations. So same formulas we have to use here. So 0.75 into 30, ये 30 है. 0.75 into 30
which is equal to 22.5. It can be rounded up to 25 mm. Okay, so it is 37.5 because 1.25 into 30 can be rounded up to 40 mm. यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इधर किसी को mm का या 0.5 या 0.1 mm का किसी को टेंशन नहीं है। हर टाइम हम 1 या 2 mm से ज्यादा डायमेंशन लेते हैं। इधर कुछ mm का टेंशन है, यही हमारा मॉम का सब्जेक्ट होता है या सॉम का सब्जेक्ट होता है, तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी रहती है उधर 1.00715। तो 1.101 की जगह 105 आएगा तो आपको आपके 2 मार्क माइनस हो जाएंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में। लेकिन इधर क्या है, आंसर अपना जो है वो 2 से 3 mm से बढ़ाते हैं हम। ये क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हमको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होती है, हमको फैक्टर ऑफ 50 ज्यादा चाहिए होता है और हमारा मटेरियल जल्दी फेल नहीं होता है डायमेंशन बढ़ाने से। तो इस पॉइंट से आपको अंदाजा लगा होगा कि इधर एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन बहुत कम भी एक्यूरेसी हमको नहीं चलेगी। आंसर 25 है और आपका डायमेंशन 37 आ गया तो वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है उस मटेरियल को। ओके, तो 2 से 3 mm को का एक्स्ट्रा डायमेंशन हम हर जगह ले रहे। देखिए, इधर हमने 28 का 30 लिया, इधर हमने 22 का 25 लिया, इधर हमने 37 का 40 लिया। इज इट करेक्ट? ओके, तो इसकी वजह से हमको mm का ज्यादा टेंशन नहीं है। हर जगह पे 1.5 mm 2 mm 2.5 mm से हमने डायमेंशन बढ़ाए हैं। ओके, नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ पिन। ओके, तो डायमेंशन ऑफ पिन के लिए हमारे पास शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p बाय पाई इंटू टाउ। ओके, वो फॉर्मूला कहाँ से आया है? वो फॉर्मूला आया है यहां से, शियर फेल्योर ऑफ पिन। सेम फॉर्मूला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। ओके, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो 2p अपॉन पाई टाउ, 2 इंटू पी का वैल्यू क्या है? 50 इंटू 10⁻³ गिवन है ये, दिस इज गिवन वैल्यू। ओके, अपॉन पाई इंटू 40, इसका आंसर आ गया 28.2। राउंड अप हम करते हैं उसको 30। ओके, तो हमारा डी आ गया 30 mm। ओके, कितने डायमेंशन आ गए हमारे? ये 1 आ गया, ये 2 आ गए, ये 2 4 आ गए और ये 5 आ गए। करेक्ट है, 5 डायमेंशन हमारे आ गए, इधर 3 और 4। ओके, टोटल 5 डायमेंशन हमारे हो गए। ओके, और दो डायमेंशन सिर्फ बचे हैं, आईडी और ओडी, और उसके बाद में हमको सिर्फ चेकिंग करना है। इज इट करेक्ट? ओके, नेक्स्ट है, ये 5 डायमेंशन आ गए, अभी 1-2 डायमेंशन सिर्फ रह गए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डायमीटर ऑफ पिन के लिए, यू सी हियर, तो यही फॉर्मूला डायमीटर ऑफ पिन के लिए क्या हो जाएगा? ये जो डी क्यूब है वो इधर आ जाएगा और सिग्मा बी जो है वो इधर नीचे आ जाएगा। करेक्ट है? तो यही फॉर्मूला हम बेंडिंग फेल्योर ऑफ पिन के लिए क्या आ जाएगा? और ये बाकी के से भी आ जाएंगे। ओके, और ये जो सिग्मा बी है वो इधर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है अभी। तो D इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 32 बाय पाई सिग्मा बी इंटू
P by 2 अपॉन B by 4 इंटू A by 3। ओके, B और A का वैल्यू हमने इधर निकाला है। ओके, P का वैल्यू गिवन है। ओके, और सिग्मा B और कभी भी सिग्मा B और सिग्मा T का वैल्यू क्या रहता है, इक्वल रहता है। नहीं दिया है तो इधर क्वेश्चन में सिग्मा B दिया है अलग। फॉर एग्जांपल इधर सिग्मा B इज इक्वल टू 50, तो फिर ये लेने का। इफ नहीं दिया है, इफ दे हैव नॉट गिवन, देन सिग्मा B इज इक्वल टू सिग्मा T लेने। ओके, तो सिग्मा B का वैल्यू क्या आ गया इधर, 80 आ गया। ओके, ये 32 अपॉन पाई। तो इसका कैलकुलेशन आप करेंगे अच्छी तरीके से। कैलकुलेशन कैसा करना है आपको मालूम है। एक एक टर्म का कैलकुलेशन करना है। ये दोनों का सम कितना है, ये टर्म का वैल्यू कितना है, बाद में ये टर्म का वैल्यू कितना है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टर्म एंड देन थर्ड रूट। ओके, सो थर्ड रूट ऑफ द आंसर। ओके, तो इसका आंसर आएगा लगभग 38.79 विच कैन बी राउंडेड अप टू 40। जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी इधर 2D के डायमेंशन आ गए। ओके, एक बेंडिंग का फॉर्मूला से आ गया, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूले से एक आ गया, और एक शेयर के फॉर्मूले से आ गया। पिन के मेरे पास 2 डायमेंशन आ गए। तो मेरे को कौन सा डायमेंशन लेना है पिन का, बोलिए, विच डायमेंशन ऑफ पिन आई विल टेक, बिगर डायमीटर। ओके, मशीन डिजाइन में कभी भी हाईएस्ट डायमीटर लेने का है हमको। ओके, तो हाईएस्ट डायमीटर कौन सा है, इसका 40 है, तो 40 हमको लेना पड़ेगा। करेक्ट है। तो हमारा डी का वैल्यू क्या आ गया इधर, व्हाट विल बी माय डीज वैल्यू, वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 40 mm। okay, we have to ignore this value. Why? Because this value is lesser than the bending value। okay, इसका मीनिंग समझ के ले लीजिए। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, इसका मीनिंग मेरे को कोई बोल सकता है क्या इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में, यू जस्ट टाइप द मीनिंग। मैं 30 mm का पिन लेता हूं, 30 mm डायमीटर का पिन लेता हूं, तो क्या होगा रे, टाइप कीजिए। मैं 30 mm का पिन लेता हूं तो क्या होगा, बोलिए। If I will take 30 mm diameter pin, then what will happen? बघूया कोण उत्तर देते, टाइप करा पटकन, टाइप इट फास्टली। शुभम माने काय म्हणतात, FS जास्त होईल म्हणजे काय माहित नाही, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी जास्त होईल। नो नो नो, पिन के बारे में हम बोल रहे हैं। मैंने 30 mm डायमीटर का पिन लिया तो क्या हो जाएगा रे, देखिए कि कौन बोलता है, वटकर सांगा काय होईल, अंकित खाडे गेस करा। नाही, एरिया वाढेल असं आपल्याला म्हणता येणार नाही, उलटा एरिया कमी होईल ना त्या पिनचा। कमी डायमीटरची पिन घेतली आपण, 30 mm डायमीटर पिन इफ यू विल टेक इंस्टेड ऑफ 40 mm डायमीटर, देन व्हाट विल हॅपन, तुमच्या लॉजिक वरून उत्तर द्यायचा प्रश्न आहे हा। ओके, यू हैव टू यूज युअर कॉमन सेन्स, यू हैव टू यूज युअर लॉजिक, यू हैव टू यूज डिझाइन प्रोसिजर कन्सेप्ट। टेल मी द आन्सर, प्रयत्न करा, ट्राय करा।
Less quantity of material required. Factor of safety कडे काय होईल? There is a problem. You type the answer. Type करा आंसर वरती. हाँ, निशांत कुलकर्णी गेस करा काय होईल? What will happen? Guess it. सेफ्टी वाढेल सर. रिसिव्हिंग कॉलला मला प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही टाईप करा. टाईप केलं तुमचा आवाज नीट येईल मला. ओके, नो प्रॉब्लेम. मी सांगतो तुम्हाला. 30 mm pin is there. You see here, 30 mm pin is there. That pin will not fail in shear, but that fail will shear. That pin will fail in bending, because for safe working of pin, minimum diameter required to overcome the bending is 40 mm. ओके ओके. तर जर आपण 40च्या ऐवजी 30 mm चं डायमीटर घेऊन पिन डिझाइन केली तर ती पिन ओके तर ती पिन शिअरला फेल होणार नाही, पण बेंडिंगला फेल होईल. लक्षात आलंय? म्हणजे ती जी पिन आहे ती अशी फेल होणार नाही. लक्षात घ्या. सॉरी, अशा पद्धतीने ती पिन फेल होणार नाही, पण ती पिन अशा पद्धतीने फेल होईल. कशामुळं? कारण टू ओव्हरकम द बेंडिंग. ओके, पॉइंट लक्षात घ्या. टू ओव्हरकम द बेंडिंग, व्हॉट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ दॅट पिन? 40 mm. जर 40 mm पेक्षा कमी डायमीटर जर आपण ठेवला त्या पिनचा 38.79 mm पेक्षा कमी, तर ती पिन बेंडिंगला फेल होईल. ओके. आणि ऑब्विसली 40 mm असल्यामुळं 30 mm डायमीटरला ती शिअरला फेल होईल. ओके. At the diameter of 30 mm, that pin will break for shear. Our diameter is 40, so it will not fail for shear also, it will not fail for bending also. So that's why which dimension is suitable? That's why this D is equal to 40 mm is very suitable. Okay. If we will take 40 mm diameter of that pin, then our pin will not break in shear. Our pin will not break in shear, and our pin will not break in bending also. Okay. So for safe working, okay, so for safe working of that pin in bending, you have to take 40 mm diameter instead of 30 mm diameter. Okay. I hope now this concept is clear to you. परीक्षेत विचारलं जात नाही. This will not asked in question paper, but it is very important for your industrial knowledge and your practical knowledge. Okay. आता concept clear झाली का ही? Why we have to take higher dimensions always? Okay. Next is dimensions D0 and D1. Okay, you see here D0 and D1. D0 and D1 are which dimensions? We have to see here. This is our diagram. D0 is which one? Outside diameter of the fork. ये जो बाहर का diameter है ये D0 है. Okay, and small d1 is
डायमीटर ऑफ द पिन हेड, इधर का डायमीटर, दिस डायमीटर पिन हेड, ये है D1 और ये है D0 बाहर का डायमीटर। ओके, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द आई, ये टॉप व्यू से इसका जो डायमीटर है ऐसा इतना, इसको हम बोलते हैं D0। ओके, तो D0 के लिए हमने इंपेरिकल डायमेंशंस यूज करे हैं, D0 इज इक्वल टू 2D। ओके, इधर इंपेरिकल है क्या किधर? ये इंपेरिकल लिख के ले लो, नोटबुक निकालो और ये दो इंपेरिकल डायमेंशंस लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है। D0 इज इक्वल टू 2D। 2D, D क्या है? व्हाट इज D? व्हाट इज D? डायमीटर ऑफ द पिन। तो डायमीटर ऑफ द पिन से डबल डायमेंशन लेंगे तो वो D0 हो जाएगा। एंड व्हाट इज D1? D1 इज द कॉलर डायमीटर ऑफ दैट पिन, वो कितना है? 1.5 टाइम्स ऑफ द D। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लिख के ले लो फॉर्मूला, ये बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सभी फॉर्मूले हमने पीछे में देखे हैं, ये डबल डबल कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, यू जस्ट राइट दिस फॉर्मूला, लिख के ले लिया क्या आपने? फिनिश होने के बाद बोल दो मेरे। ओके, तो D0, how much is the D0 value? 2 into D, 2 into D is equal to 2 into 40 is equal to 80। ओके, एंड D1, ओके D1 इज, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ इसमें, ये क्या है देखिए, D1 is equal to 1.5 into D। कितना आ गया ये? D का वैल्यू कितना है? 40 है, 1.5 into 40 which is equal to 60 mm। ओके, तो ये D1 is equal to 60 mm। okay, so D1 is equal to 60 mm and D0 is equal to 80 mm। exactly correct। okay, so in this way one dimension D0 is equal to 80 and D1 is the collar diameter of pin, पिन के ऊपर जो हेड है उसका डायमीटर है D1, वो D1 क्या आ गया? 60 mm आ गया। ओके, तो ये डायमेंशन हमने सभी डायमेंशन हमने निकाले। ओके, अभी जस्ट वी विल सी हाउ मेनी डायमेंशंस वी हैव कैलकुलेटेड। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ओके, and this is 6 and this is 7। total 7 dimensions we have calculated। okay, so total 7 dimensions we have calculated। okay, so these are the dimensions। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 6 मार्क्स मिल जाएंगे। आउट ऑफ 8 यू विल गेट 6 मार्क्स। आठ मार्क्स में से 6 मार्क आपको इधर मिल जाएंगे। 2 मार्क किसको रहेंगे? ये स्ट्रेसेस चेकिंग के लिए 2 मार्क रहेंगे। ओके, तो उतना ये डायमेंशन एक बार आ गया
तो हमको स्ट्रेस कैलकुलेट करना बहुत इजी है, क्योंकि अभी मेरे को एक बोलिए, हमारे पास कौन सा भी डायमेंशन है तो उस डायमेंशन के ऊपर ऊपर से हम स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम शेयर? हाँ, बोलिए मेरे को, माने का क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, मेरे को बोलिए हम स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे डायमेंशंस के बेस पर। तीन चीजों के रिलेशन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए, बराबर है। तो फोर्स हमको दिया रहता है क्वेश्चन में, और एरिया हम निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो उसके बेस्ड हम स्ट्रेस आता है हमारा, वो स्ट्रेस हमको मैक्सिमम स्ट्रेस से कंपेयर करके चेक करना है वेदर डायमेंशन इज सेफ और नॉट। और एक मैं आपको बोलता हूं, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट और कौन सा भी ये चेकिंग प्रोसीजर हम देखेंगे तो 99.99% हमारा जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट अजम्पशन में ही बैलेंस हो जाता है। 99% आपको ऐसा कभी भी नहीं करना पड़ता है कि डायमेंशन चेंज करना पड़ता है क्योंकि ज्यादा स्ट्रेसेस आ रही है। 99% आपकी स्ट्रेस और डायमेंशन करेक्ट होते हैं, सिर्फ वो स्ट्रेसेस चेक करना एक फॉर्मेलिटी है, ये पॉइंट समझ लो आप। ओके, अभी माने ने क्या पूछा है, डायरेक्टली शेयर स्ट्रेस का डायमेंशन कैलकुलेट किया तो चलता है क्या, चेक किया तो चलता है क्या? तो स्ट्रेस का क्या, स्ट्रेस का जो डायरेक्ट शेयर किया तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस चेक किया तो चलता है। इधर क्या है, कुछ तो आप चेक कर रहे हैं, ये उनको दिखाना है हमको, पॉइंट ध्यान में रखिए। अभी जैसा माने ने बोला, माने क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल आई को शेयर में हो गए, एक शेयर हो गया तो एक टेंसाइल में देखिए, नीचे में, नीचे का जो फोर्क है वो फोर्क को टेंसाइल में चेक कीजिए। पॉइंट समझ में आ गया ना? पेपर चेक करने वालों को भी वैरायटी दिखनी चाहिए। 99.99% ये आपके डायमेंशन एग्जैक्टली करेक्ट होते हैं, ये जो आंसर है वो 99% करेक्ट होता है। अभी फॉर एग्जांपल, अभी जैसे माने ने पूछा, आप डायरेक्ट शेयर भी चेक कर सकते हैं, इसका शेयर चेक करो। पेपर चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए कि हर एक कंडीशन में वो आप चेक कर रहे हैं। अभी शेयर चेक हो गया, ये किसका है, आई का हो गया। तो अभी माने आप क्या करो, फोर्क का टेंसाइल में चेक करो, फोर्क का डायमेंशन टेंसाइल में चेक करो, कॉम्प्रेशन में चेक करो, क्रशिंग में चेक करो। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये तीन डायमेंशन आप भी आपने चेक किए तो भी आपको 8 में से ऑलमोस्ट 8 मार्क मिल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ हमको एग्जामिनर को ये दिखाना है कि डायमेंशन कैसे चेक करते हैं, ये आपको आता है, इतना ही आप उसको दिखाने का है। अभी सभी चेक करने में आपका टाइम जा सकता है, आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो जैसे कि माने ने मेरे को पूछा, तो एक शेयर का, फॉर एग्जांपल इधर आप शेयर में चेक करो आई आई को, डबल आई नहीं तो फोर्क को आप टेंशन में चेक करो। तो में आ गया ना? तो ऐसा आप कर सकते हैं। 100% इधर सभी का सभी चेक करना है ऐसा कुछ कंडीशन नहीं। इधर एक नहीं तो दो डायमेंशन चेक करो, दो नहीं तो तीन डायमेंशन चेक करो, आपको 8 में से 8 मार्क मिल जाता है। ओके, देखिए, चेकिंग ऑफ शियर स्ट्रेस इन आर। ओके, तो चेकिंग ऑफ स्ट्रेसेस इन आर। ओके, तो पहला है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस आई कौन सा है हमारा, ये जो ऐसे वाला रहता है पहला, इसको बोलते हैं आई। ओके, और डबल आई नहीं तो फोर्क हम किसको बोलते हैं, या ऐसे डायमेंशन वाला जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्क बोलते हैं। तो ये
सिंगल आई का चेक करेंगे। सिग्मा टी इज इक्वल टू पी बाय बी अपॉन डी जीरो माइनस डी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ से लाया हमने, टेंसाइल फेल्योर ऑफ द आई। टेंसाइल फेल्योर ऑफ द आई का फॉर्मूला कहाँ पे है देखिए, ये फॉर्मूला हमने कल देखा है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है उन्होंने, सेम फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला दे हाउ यूज, P is equal to 50 into 10 raised to 3, B is equal to 40, D0 minus D, okay, which is equal to 31.20. ओके, सो इसका वैल्यू क्या है, सिग्मा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सिग्मा टी का मैक्सिमम वैल्यू है 80। हमारा स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ गया 31। तो हम क्या बोलते हैं, हेंस, इधर बोलने का हेंस डिजाइन इज सेफ। डिजाइन इज सेफ, ऐसा इधर बोलने का। ओके, नेक्स्ट है सिग्मा सी। सिग्मा सी यानी क्रशिंग। ओके, सिग्मा सी इज इक्वल टू पी बाय बी बाय डी। ओके, ये कहां से लिया है, तो सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज। सिग्मा सी is equal to, okay, so what is P here, given it is 50 into 10 raised to 3, B into D, it is equal to 31.20 C 25. So sigma C, okay, so how much is the sigma C value, 80। सिग्मा सी यानी कॉम्प्रेशन वाली वैल्यू स्ट्रेस, ये कितनी है 80 है। तो हमारा डिजाइन क्या है, यहाँ पे भी सेफ है, यहाँ पे भी हमारा डिजाइन क्या है, सेफ है। सॉरी, यहाँ पे सेफ हो गए। ओके, आखिर अभी यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, तो मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम होता है, शियर का और टेंसाइल। फिर से यही फॉर्मूला लिखेंगे, P बाय बी इंटू डी बाई टू, तो स्ट्रेसेस भी सेम होती। ओके, तो इसका कितना वैल्यू है 31.25, 31.25, ये कितना हो गया 40। तो 40 से ये क्या है, कम है, तो डिजाइन इज सेफ, डिजाइन इज सेफ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज चेकिंग फॉर फोर्थ। सेम फॉर्मूला फोर्थ के लिए है। सिग्मा टी का फॉर्मूला क्या है फोर्थ के लिए या डबल आई के लिए, शेयर और इसके लिए और टेंसाइल और शेयर के लिए सेम फॉर्मूला है फोर्थ का। ये देखिए 2a इंटू डी जीरो माइनस डी। ये कैसे आ गया, ये हमने ऑलरेडी कल देखा है। देखिए p अपॉन 2a अपॉन डी जीरो माइनस डी। ओके, तो इसमें वैल्यू डालने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा टी 25 या 80 से क्या है, कम है, तो डिजाइन इज सेफ। हो गए। सिग्मा सी का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन 2AD, यह है
ये सिग्मा सी का फॉर्मूला आई के लिए पी अपॉन 2AD। देखिए अभी पी अपॉन 2AD, पी अपॉन 2AD, यहाँ से हम ए और डी का वैल्यू डालेंगे। ये आ गए 25, ये मैक्सिमम वैल्यू है 80, डिजाइन इज सेफ। ओके, और शेयर स्ट्रेस का भी सेम आ जाएगा। शेयर स्ट्रेस और ये दोनों सेम है, इसका भी मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। ये और ये सेम है। ओके, ये और ये सेम है और ये सेम है। ओके, तो ये आ गया। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है, सेम फॉर्मूला है, तो इसका भी आंसर 25 आ जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू है 40। ओके, मैक्सिमम वैल्यू है 40। तो हमारा ये जो शेयर स्ट्रेस है किसका, डबल फोर्क का, वो विद इन द लिमिट रहेगा, इसलिए डिजाइन इज सेफ ऐसे लिख देने। तो ये होने के बाद आपको ऐसे एक बॉक्स करना है और उस बॉक्स में ये सभी के आंसर्स लिख देने ही। D1 A B, फॉर एग्जांपल D is equal to this one, D0 is equal to this one, A is equal to this one, B is equal to this one। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी के आंसर्स उस टेबल में या कॉलम में लिख देने हैं। ओके, तो और टाइम आपको मिला, ये ड्राइंग मत निकालो साइड में। आपको टाइम मिला, फॉर एग्जांपल आपको इधर 8 में से 8 मार्क मिल जाएंगे। आपको टाइम मिला तो ये डायमेंशन इसमें डाल के ये ड्राइंग निकालो। ओके, जैसे कि बी का डायमेंशन 40 था तो बी 40 है, ए 25 है, ये इधर का ए 25 है, ये पिन हेड का डायमीटर 60 है, पिन का डायमीटर 40 है। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। बी का डायमेंशन 30 है, D1 का डायमीटर 35 है। तो ऐसा इधर डाल के आप ऐसा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकाल सकते हैं, आपको टाइम मिला तो। नहीं तो नहीं निकाले तो भी चलता है। इधर 9 में से 8 मार्क मिलते हैं, 8 में से 7 मार्क मिलते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, इसमें कुछ डाउट, आपको कुछ क्वेरी? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी रहेगी तो आप टाइप करके मेरे को भेज सकते हैं। बोले कुछ क्वेरी है? एकदम सिंपल है। आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये पूरा डायग्राम और ड्राइंग पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अटेंडेंस लेता हूं मैं आपको। ओके, ठीक है, और कुछ डाउट्स किसी के? सिंपल कंसेप्ट है। अभी ये समझ में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा प्रॉब्लम है 4.5, ये प्रॉब्लम सभी लोग क्या करो, नोटबुक में लिखो। यू राइट दिस होल प्रॉब्लम इन नोटबुक, समझा के ले लो, और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को बाद में ये करो। यू यूज द नोटबुक फॉर दैट। नोटबुक अभी फ्रेश है, अभी ताजा है, इसलिए आज शाम को ये प्रॉब्लम नोटबुक में लिख दो।